All right, so now let us discuss half an hour discussion. So, what is half an hour discussion? It is basically designed to facilitate focused discussion on matters of public importance. तो parliamentary tools की हम बात कर रहे थे, and this half an hour discussion is also there. So, it is what designed to facilitate focused decision on matters of public importance that have already been debated extensively. पहले से there has been debate, there has been talks in the parliament, but they want a very specific focused discussion on that topic. तब जो है half an hour discussion वो होता है, and the speaker may allocate up to 3 days per week for such discussion, and there is no formal motion presented or voting conducted. The discussion is purely for elucidation on matters of fact. Then we have short duration discussion. So this is also known as the 2 hour discussion. 2 घंटे का टाइम मिलता है इसमें. And this device enables members to deliberate on matters of urgent public significance that require immediate attention but do not necessitate a formal motion or results in voting. इसका मतलब क्या है? ये वाला चीज देखिए कि 2 घंटे की डिस्कशन होगी फॉर अर्जेंट पब्लिक सिग्निफिकेंस एनी ऑन एनी मैटर विच हैज ए पब्लिक सिग्निफिकेंस, बट it does not lead to a formal motion or any kind of voting. As the name suggests, short duration discussion जो है, it is limited to 2 hours, and the speaker may designate 2 days per week for such discussion. और ये 1953 से जो है इसको हम यूज में ला रहे हैं. देन स्पेशल मेंशन पे आते हैं. सो व्हाट इज स्पेशल मेंशन? तो इन राज्यसभा it is a device which allows member to highlight issues which are not covered under any other procedural rules like question hour or adjournment motion, and this enables raising of matter which lacks immediate urgency or are not fitting into predefined categories of discussion. तो ये स्पेशल मेंशन है क्या बेसिकली? देखिए, अब राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो रूल्स में, कन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं है विच नेसेसिटेट्स और फैसिलिटेट्स द डिस्कशन ऑफ दैट मैटर, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. जो इम्पोर्ट आपको मैटर पर डिस्कशन करना है, इट माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट और दैट अर्जेंट, बट फिर भी इफ यू वांट टू रेज दैट मैटर, सो इट कैन बी डन वाया द स्पेशल मेंशन. उसके बाद जो है लोकसभा इक्विवेलेंट, it is known as notice under Rule 377. And this serves a similar purpose to allow members to bring up diverse issue for attention. अब देखिए कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एमपीज होते हैं. देर आर लॉट ऑफ एमपीज एंड दे नीड टू सेटिस्फाई देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो suppose I am a member of parliament and you guys are my voters from my constituency, and then you say कि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, and this is some issue, फुटपाथ का कोई issue है, और the state government is not helpful, and the municipality is not helpful, and the DM is not helpful. So what happens is that I have to satisfy you. What I'm going to do is that just to show you that okay, I have raised this issue in the highest legislature possible. Which is the highest legislature in India? It is the parliament. तो आपने जो है पार्लियामेंट में उसको मेंशन में डाल दिया that okay, that I would like to draw the attention of the house to this issue. Okay, so this issue a matter of national importance कि एक पर्टिकुलर एमपी के कंस्टिट्युएंसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, or certain problem is there, but it is okay, it might not be immediately urgent, लेकिन you need to raise that issue. Okay, so that you can go back to your constituency and you can tell the people that see, I have raised this in parliament. This might have an impact, the people, the district magistrate or some lower level officer, if he sees it, and then he will say that okay, this has been raised in the parliament, so now let me fix the issue in this particular constituency, otherwise it might come in the news or something like this. तो इस टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं, अगर आपको रेज करना है, जो आपका एक, आप कह सकते हैं पर्सनल मैटर टाइप का है, सो दिस कैन बी डन वाया दे
स्पेशल मेंशन। सो ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। एनी इशू विच डज नॉट फिट इन एनी कैटेगरी, ओके, वो जो है स्पेशल मेंशंस के थ्रू आप कर सकते हैं। राज्यसभा में प्रेजेंट होता है और उसका लोकसभा इक्विवेलेंट इज नोटिस अंडर रूल 377। नाउ समबडी वाज आस्किंग मी कि क्या सारे रूल्स पढ़ना है, जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है क्या पढ़ना है। अगेन बिकॉज ऑफ द अनप्रडिक्टेबल नेचर ऑफ यूपीएससी आई कैन नॉट से कि मत पढ़ो, नहीं आएगा। आ गया तो फिर आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज द आरओआई इज एक्सट्रीमली पुअर, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सट्रीमली पुअर। उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ आपके लिए, दैट आई कैन मेक ए समरी डॉक्यूमेंट, ओके। समरी डॉक्यूमेंट जो है आई कैन आस्क पीपल दैट दे कैन मेक ए समरी डॉक्यूमेंट, और उसमें जितने भी रूल्स होते हैं उनका एक समरी हो सकता है दैट यू कैन गो थ्रू, एंड यू कैन गो थ्रू इन द मंथ ऑफ मे और मे बी इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। बट अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे हर चीज के थ्रू जाना चाहिए द इंटायर रूल बुक, so I'll say that it is a very poor ROI, because you have to remember as an aspirant you are needed in other subject, your attention is needed in other subjects as well, like environment, ecology, उसमें ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप अपना फोकस वहां रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशंस के बारे में। सो व्हाट आर रेजोल्यूशंस? दीज आर फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन और डिसीजन मेड बाय द हाउस, and they are significant tools for members to influence policy, express their collective sentiment, and call for action on specific issue. So this is a very good tool to extract accountability from the executive. So objective क्या होता है रेजोल्यूशन का? डिक्लेयर एन ओपिनियन और recommendation, approve or disapprove of government acts or policies, convey messages, commendations or request for action, and highlight matters for government consideration. So these are the four objectives of resolution. Okay. So what are the types of resolution? There is a private member resolution. Who is a private member? I had asked you this time and again. A private member is any non-ministerial MP, somebody who is not a minister. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस और हर किस्म के पार्टी के लोग होते हैं। इट इज नॉट ओनली द ऑपोजिशन एमपीज, दिस ऑल्सो कंटेन एनी रूलिंग पार्टी एमपी who is not a minister. Okay. So private member resolution is introduced by non-ministerial MP, typically discussed on alternate Fridays. Government resolution, it is moved by minister, which includes approvals of international treaties or policies, declaration of government policies, and approval of committee recommendation. आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये अगर अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी और पॉलिसीज है, इसको क्या कहते हैं? That you are seeking the approval of international treaty of or policies. This is a step towards something known as ratification. मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट क्या सिर्फ ट्रीटी साइन करने से हो जाता है? अमेरिका हैज साइन मेनी ट्रीटी बट इट हैज नॉट रैटिफाइड एनीथिंग। ओके, ऑलराइट। तो ये जो है, ओके, ये जो है रैटिफिकेशन, आपको जब तक आपने लॉ पास नहीं किया, फॉर एग्जांपल इंडिया ने ट्रिप्स साइन कर लिया, ओके, ट्रिप्स में जाके साइन कर लिया, बट द मोमेंट इट अमेंडेड द पेटेंट्स एक्ट 1970, देन ओनली वी से कि ट्रिप्स अब अप्लाई हो रहा है इंडिया पे। ओके। तो ये रैटिफिकेशन जो होता है, ये जो रैटिफिकेशन होता है, दिस इज मेकिंग ऑफिशियल। अमेरिका इज वेरी नोटोरियस। क्यों नोटोरियस है? बिकॉज वो साइन तो कर लेता है, इट साइंस ए लॉट ऑफ ट्रीटीज बट इट डज नॉट अप्रूव देम। ओके, तो ratify, it does not ratify it. Yes. So statutory resolution, this is the third kind of resolution. It is moved by either private members or ministers, and it is too often to comply with constitutional provisions or legislations. Okay, ठीक है। So
differences from motion. So all resolutions are substantive motion, but not all motions are resolutions. So ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी resolutions होते हैं उनको हम substantive motion के कैटेगरी में डालते हैं. So we put them in the bracket of substantive motion. But please remember, not all motions are resolutions. Okay. Resolutions must be voted on, whereas not all motions require a vote. So जितने भी resolutions आते हैं उनमें आपको वोट करना होता है, but not all motions require a vote. All resolutions are what? All resolution, if you see here, they are substantive motion. They are what? Substantive motion. Okay. So you have understood the difference. All resolutions are substantive motion, but not all motions are resolutions. जब तक resolution पे vote नहीं करिएगा तब तक resolution pass नहीं होगा. Whereas all motions, they do not require a vote. All motions, they have different use case and different things. Okay. Now let us talk about types of bills. This is very important. So there can be two kinds of bill. One is your public bill and the other is a private bill. Okay, so public bills, they are introduced by ministers reflecting government policy, whereas private bill jo hai, they are introduced by members of parliament other than minister. So who is a private member? Private member jo hai, somebody who is not a minister. So if he comes up with a bill, it is called a private member bill. So क्या कभी इंडिया के हिस्ट्री में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? हैज इट बीन पास्ड? So the answer is yes, it has been passed, but has it been passed in recent history? Then the answer is no. Okay, last जो है 1960s में पास हुआ था. Okay. All right. So despite following a similar procedural path, they differ in aspects such as their introduction, discussion, and the frequency of their consideration. So frequency किसका ज्यादा होगा consideration का? Public bills का या private member bills का? Public bills का होगा या private member? Public bills का होगा because it is important for the smooth running of the executive. Without the bills, executive will not have any powers to make laws and to implement those laws. So let us talk about the classification. So जो बिल होता है आपका नॉर्मल बिल होता है, दे आइदर प्रपोज न्यू लॉ और पॉलिसी. ओके, आइदर और दे अमेंड. मान लिया कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, then you will have original bill. Now suppose you want to amend any existing bill, so you will have amending bill. जैसे for example, let us say that the Patents Act was already passed in 1970. You want to change something, so then you will have patents ब्रैकेट अमेंडमेंट, जो बताएगा कि आप अमेंडमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, आप जो है अमेंडमेंट के लिए लेके आ रहे हैं. सो अमेंडिंग बिल्स विल बी टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लॉज. एंड देन यू हैव कंसोलिडेटिंग बिल्स विच विल सीक टू कंसोलिडेट लॉज. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिल्स हैं और अलग अलग लॉज हैं, उनको एक ही अम्ब्रेला के अंदर यू वांट टू ब्रिंग a lot many laws into one umbrella. Okay, so you can say like this. Okay, कि ये consolidating bills होते हैं. Then expiring laws, मतलब अगर जैसे आपने कोई बिल लेके आए थे पहले, कोई जो एक्ट बन गया था और उसका 15 साल है, जैसे लेटस से कि आपने रिजर्वेशन लेके आए और रिजर्वेशन 15 साल के लिए है वाया एन एक्ट. सो आपको उसको जो है 15 साल होने जा रहा है एंड यू वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर. सो उस केस में जो है आप कंटिन्यूएंस बिल लेके आ सकते हैं. ओके. आफ्टर दैट यू हैव अ रिपीलिंग बिल. रिपीलिंग बिल में क्या होता है? ओके, रिपीलिंग बिल में इट प्रपोज द रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज. सो ऑलरेडी कोई लॉ है उसको आपको रिपील करना है, सो यू कैन कम और ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? रिपील. ओके. है बिल्कुल. आप अगर देखेंगे कि सेंसस को कैसे कर रहे हैं आप, जो डिलिमिटेशन है उसमें हमने बात की थी ना, दैट 1971 पे फ्रोजन है, तो उसको इज इट पॉसिबल विदाउट
इज इट पॉसिबल विदाउट द लेजिस्लेचर्स अप्रूवल? ओके, सो ये जो है आप उसको कर सकते हैं। validating bill, so this gives legal validity to certain action, जो action चल रहा था, maybe due to some kind of rules, maybe some kind of convention custom, उसको जो है आप अगर validate करना चाह रहे हैं, so validating bills can be there. Then bills to repeal ordinances, enact laws to repeal replace ordinances issued by the president. तो ordinance जो है वो आपका चल रहा है, और अगर आपको उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके कोई लॉ लाना है, सो यू कैन ब्रिंग इट. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, इट इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन यू हैव मनी बिल एंड फिनेंशियल बिल्स विच डील्स विद फिनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो यहां पर जो है हमने क्या बात की थी, दो टाइप के बिल हो गए जो कि प्रोसीजर के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं. दीज आर ऑल द बिल्स जो कि कंटेंट के बेसिस पे क्लासिफाइड है कि उस बिल के अंदर है क्या, उस बिल का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिल. नाउ वी आर टॉकिंग कि प्रोसीजर के बेसिस पे क्या है. सो ऑर्डिनरी बिल जो है, इट कंसर्न मैटर्स अदर देन फिनेंशियल सब्जेक्ट्स एंड फॉलो ए स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस. तो यहां पर क्या है कि कोई भी मैटर विच इज अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट एंड जो एक स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फॉलो करता है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, राज्यसभा का कैसा पावर है. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्डिनरी बिल, राज्यसभा हैज एन इक्वल पावर. ओके, इक्वल पावर, ठीक है. ओके, सो आई टॉक अबाउट द आधार केस, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, फिर लास्ट में जो है हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. All right. So there is a question, can an act not be repealed by executive repeal? Okay. So it depends. Okay. It depends. कि ऑर्डिनेंस है ना, तो ऑर्डिनेंस पे कोई एक्शन ही आप मत लो, तो ऑर्डिनेंस ऐसे भी खत्म हो जाता है. इफ यू नो, जब सेशन में नहीं है, यू ब्रिंग द ऑर्डिनेंस, एंड व्हेन द पार्लियामेंट कम्स इन सेशन, इफ यू डोंट टेक एन एक्शन, इट एनीवेज रिलैप्सेस. ओके. दूसरी चीज है कि ऑर्डिनेंस पे अगर आपको उसको रिप्लेस करना है विथ ए मॉडिफाइड एक्ट, with a modified law, that you can also do, okay, via the normal route. All right. Yes. But an act को भी आप रिप्लेस कर सकते हो. एक्ट को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो. इफ एन एक्ट इज इन प्रोसेस और इट इज इन पावर, सो उसको रिप्लेस करने के लिए भी आप बिल ला सकते हो. नहीं नहीं, यू हैव टू, ओके, यू हैव टू ब्रिंग अ बिल. या तो उसको आप रिपील करो, अगर वो एक्शन को आपको जो है, एक्ट क्या है, एक्शन को अगर आपको खत्म करना है तो उसको रिपील करने के लिए आप ला सकते हो. सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ना, बिकॉज लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज समथिंग. लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज समथिंग, एंड व्हाट वी से, वी आर, हम जो एक ऐसे सिस्टम में है जहां पर क्या करना है, जहां पर लेजिस्लेचर को लॉ बनाना है, तो क्या एग्जीक्यूटिव कर सकता है? एग्जीक्यूटिव कैन ओनली एग्जीक्यूट द लॉज, इट कैन नॉट मेक द लॉज. ओके. अनलेस एंड अनटिल ऑर्डिनेंस, द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तब आप ऑर्डिनेंस बना सकते हो. या अगर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी हमने अगर पढ़ा है, आपको याद हो, तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन यू कैन डू, बट दैट द स्कोप इज लिमिटेड ना, regarding subordinate legislation. And then also you have a committee on subordinate legislation which looks into whether you are overstepping and coming into the territory of the legislature via the subordinate legislation route or not. All right. So ये जो चीज है, okay, ये जो चीज है, this is something that you need to understand. अब जैसे फार्म फार्म बिल की अगर हम बात करें, तो फार्म लॉज हैं, ओके, फार्म लॉज हैं, वो क्या हुए थे, दे वेर ब्रॉट, एंड देन व्हाट उस पे हुआ क्या था, उस पे हुआ क्या था 2021 में. आपके फार्म लॉज पहले आ चुके थे, 2021 में क्या आया था, फार्म लॉज रिपील बिल 2021. तो फार्म लॉस पहले आ गए थे, फिर मोदी जी आए, बोले कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. फिर 2021 में दे ब्रॉट दी फार्म लॉ रिपील बिल. ओके. सो उसके उसके थ्रू जो है आपका ये जो है पास हुआ था. ठीक है. एंड इट वाज देन पास्ड इन द लेट 2021. पहले लोकसभा में आया, फिर लेट 2021 में पास हुआ, फिर जाके रिपील हुआ. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके. मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल तो आप समझ गए. तो राज्यसभा का पावर क्या होता है?
इट इज इक्वल टू लोकसभा, मतलब राज्यसभा के अंदर भी आप ऑर्डिनरी बिल लेके आ सकते हो, एंड राज्यसभा हैज इक्वल पावर, राज्यसभा हैज इक्वल पावर इन दैट केस। अगर मैं बात करूं मनी बिल्स के बारे में, सो इट स्पेसिफिकली डील विथ financial matters defined under Article 110 of the Constitution, including taxation, including borrowing, and including expenditure. So taxation, borrowing और expenditure जो है, उस केस में अगर हम देखते हैं तो मनी बिल हो जाता है। अब यहां पर क्या राज्यसभा को सेम पावर है? हमने ऑर्डिनरी बिल्स में बात की थी कि दे हैव द सेम पावर, बट व्हाट अबाउट मनी बिल? सो द आंसर इज नो। ओके, द आंसर इज नो। यहां पर अगर आप देखेंगे, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, एंड दे अप्रूव द मनी बिल्स, दे इनिशिएट एंड अप्रूव, विद द राज्यसभा हैविंग ओनली ए रिकमेंडेटरी रोल, मतलब सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो भी क्या रिकमेंडेशन हर समय दे सकते हैं, या उनका कोई टाइम पीरियड होता है? विद इन 14 डेज जो है, एक समय होता है, 14 दिन के भीतर अगर आप रिकमेंडेशन अपना नहीं दे रहे हैं, सो द बिल इज डीम टू बी पास्ड। जो बिल है, इट इज डीम टू बी पास्ड विथ और विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकसभा। एंड व्हेन द लो सॉरी राज्यसभा, एंड व्हेन द राज्यसभा गिव्स ए रिकमेंडेशन, डज द लोकसभा हैव टू एक्सेप्ट इट? द आंसर इज नो। Can or cannot. If the recommendation is not accepted, then also it is passed. So, overall power when it comes to money bill is in the hands of the Lok Sabha, और राज्यसभा का एकदम लिमिटेड रोल है। ओके, सो यहां पर एक प्रॉब्लम आई थी, दैट the BJP government, it did not had the numbers in Rajya Sabha for a long time, एंड लोकसभा में इनके पास नंबर्स, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल हैव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ द थिंग इज दैट दे स्टार्टेड टू क्लब टुगेदर ऑर्डिनरी लॉज एज मनी बिल्स। तो उससे फायदा क्या होगा? अगर आप नॉर्मल लॉज को मनी बिल के साथ क्लब कर रहे हैं, देन यू डोंट रिक्वायर द राज्यसभा ओवरसाइट। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये चीज आपको समझ में आई? तो यहां पर हुआ क्या था? व्हाट हैड हैपेंड वाज कि आधार बिल जो है, उसको मनी बिल की तरह पास किया गया था। व्हाई? बिकॉज उसको कहा गया था दैट इट वाज अप्रोप्रिएटिंग फंड्स, ओके, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहा है, दैट्स व्हाई इट कैन बी क्लब्ड एज ए मनी बिल। नाउ प्रॉब्लम ये थी कि ये, इसको बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। व्हाई? बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें थी। आधार में क्या था? प्राइवेसी लॉज, जिसमें राज्यसभा को मौका नहीं दिया गया अपना ओपिनियन रखने के लिए या उस पर कंट्रोल रखने के लिए। सो व्हाट हैपेंड? ओके, व्हाट हैपेंड, दे सेड कि प्राइवेसी लॉज बीजेपी जो है पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, और वो राज्यसभा का ओवरसाइट नहीं चाहती है। दैट इज व्हाई इट इज जस्ट गिविंग दिस एक्सक्यूज कि अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है, इसीलिए इट शुड बी पास्ड एज ए मनी बिल। सो मनी बिल जैसे ही आप जब क्लासिफाई करते हैं, राज्यसभा लूजेस द पावर, लोकसभा गेन्स द पावर। राज्यसभा लूजेस दी ओवरसाइट पावर, एंड लोकसभा जो है उसके पास सारा पावर आ जाता है। बट इन 2018 व्हाट हैड हैपेंड वाज, दे गेव द जजमेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, दे गेव द जजमेंट कि ये जो है, ठीक है, मनी बिल जो है वो है, एंड द गवर्नमेंट कैन पास इट। ऑल राइट, तो इस पे प्राइवेसी कंसर्न्स जो है बहुत सारे आए थे कि ये गवर्नमेंट का ओवर रीच है, दैट इट इज क्लबिंग इट एज ए मनी बिल एंड ट्राइंग टू स्कर्ट द राज्यसभा स्क्रूटिनी। ओके, सो ये प्रॉब्लम आया था। ऑलराइट, क्या ये चीज क्लियर है अब? क्या ये चीज क्लियर है? प्रॉब्लम यहां पर हुई थी कि इनिशियली जो है, इनिशियली इसको, आधार को जो है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, आधार को 2010 में, 2010 व्हेन द यूपीए वाज देयर,
दे हैड प्रेजेंटेड इट एज एन ऑर्डिनरी बिल इन द राज्यसभा ओनली। उसके बाद क्या हुआ, ये एक्ट नहीं बन पाया। दिस कुड नॉट हैपन, कन्वर्ट इनटू एन एक्ट ड्यू टू द यूजुअल जो स्लो पेस हमारा चलता रहता है। बट ये बिल कंटिन्यू था बिकॉज राज्यसभा में हमने बात की थी ना लैप्स वाले में, दैट अ बिल विच हैज ओरिजिनेटेड इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स। याद आया? राज्यसभा वाला बिल लैप्स नहीं करता। वाई? बिकॉज राज्यसभा इज ए कंटिन्यूअस चेंबर। यस और नो? तो वहां पर कंटिन्यूड था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब एनडीए की सरकार आ गई थी, यूपीए तो चला गया 2014 में। एनडीए की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको वापस खींच लिया और 2016 में एज ए मनी बिल वापस लेके आए। ये कह के इन द लोकसभा ऑब्वियसली, ये कह के कि ये जो मनी बिल है बिकॉज इट इज ड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू पास दिस आधार। ओके, एंड उसके बाद जो है इन पे केस चला इन द कोर्ट, एंड उनको कहा गया कि प्राइवेसी लॉस को स्कर्ट करने के लिए एंड राज्यसभा का स्क्रूटनी को स्कर्ट स्कर्ट करने के लिए यू आर ट्राइंग टू डू दिस। ओके, सो ये चीज जो है, ये चीज जो है दिस इंडेंजर्ड, ओके, दिस इंडेंजर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज सेड। अब क्लियर है क्या सभी को व्हाट वाज द आधार कंट्रोवर्सी? ओके, तो ये जो है दिस वाज, ओके, दिस वाज द इशू। नाउ प्रॉब्लम थी क्या कि एक एक केस था जिसमें इसका नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज द सिद्दीकी केस। तो सिद्दीकी केस में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो स्पीकर का डिसीजन होता है, जो स्पीकर का डिसीजन होता है टू क्लासिफाई एनीथिंग एज ए मनी बिल, ओके, वो अगर वो गलत भी है स्पीकर का, तो वो इट विल बी फाइनल और उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो बहुत ऐसा हल्ला हो रहा था कि इससे तो राज्यसभा कुछ भी, हम जो है दिस दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है राज्यसभा का स्क्रूटनी, if the government does not want the scrutiny of the Rajya Sabha, what it is going to do, it will put any kind of random provision in the bill, सब बहुत सारे लॉज के साथ में कोई रैंडम प्रोविजन घुसा देगी और उसमें कहेगी कि अरे देखो यहां से तो पैसा हम निकाल रहे कंसोलिडेटेड फंड से, सो दिस विल बी ए मनी बिल, एंड देन इट विल ट्राई टू स्कर्ट दी राज्यसभा स्क्रूटेनी, इट विल ट्राई टू इवेट दी राज्यसभा स्क्रूटेनी। सो ये चीज जो है दिस वाज अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट। ओके, एंड इन द सिद्दीकी केस दे हैड सेड कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा इवन दो वो गलत भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर नाउ। जुडिशियल रिव्यू में प्रॉब्लम पता है क्या है? जुडिशियल रिव्यू केस बाय केस बेसिस पर डिपेंड करता है। अभी मैं केस लेके जाऊंगा अगर कोर्ट में, तो हो सकता है द कोर्ट कैन ओवरटर्न इट्स वर्डिक्ट इन द सिद्दीकी केस, और वहां पर यह कह सकती है कि नहीं नहीं जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए बेस्ड ऑन मैलाफाइड इंटेंशंस। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी जो है 2014 के केस पे हमारा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि स्पीकर्स डिसीजन विल बी फाइनल। तो व्हाट इज इन द प्रेसिडेंट राइट नाउ, ये है कि मनी बिल अगर आप लाना चाहते हैं तो इट इज अलाउड। Why? Because in 2018 a judgment came by SC, and this judgment said that it is fine if the government wants to bring the Aadhaar bill as a money bill. Now is it clear to everybody what was the Aadhaar controversy? ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनेंशियल बिल्स के बारे में। जैसे मनी बिल्स होता है, मनी बिल कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। व्हाट अबाउट फिनेंशियल बिल, वेयर इट इज गिवन? सो आर्टिकल 117 में जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर जो है आपको फिनेंशियल बिल मिलता है। नाउ फिनेंशियल बिल आल्सो हैज इट्स टाइप्स। ओके, सो लाइक मनी बिल्स दे डील विद फिनेंशियल मैटर्स बट दे रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन एंड दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें भी जो है फिनेंशियल बिल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं।
और वो जो टाइप्स हैं उनके बीच में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ए PYQ। ओके, ये क्या है? PYQ है। अब आ जाते हैं फाइनल टाइप के बिल पे, दैट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, इट ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विच रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट, एंड दिस इंक्लूड्स ए स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड इन सम केसेस रैटिफिकेशन बाय द स्टेट। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं बाई सिंपल मेजॉरिटी, वुड दैट बी कंसिडर्ड ए अमेंडमेंट? अगर हम सिंपल मेजॉरिटी से कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज पास्ड वाया सिंपल मेजॉरिटी, तो वुड दैट बी कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? द आंसर इज नो। ओके, हमने देखा है वो उसको नॉर्मल लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? नॉर्मल लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक बिल, so it is presented by a minister reflecting the government's agenda. It embodies the government's policies and proposal for new laws or amendments, and it stands a higher chance of being passed due to government backing. जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज थ्रू देम ओनली द गवर्नमेंट रन्स, दे गेट देयर पावर, and rejection by the house of the government bill is seen as a lack of confidence in the government, potentially leading to its resignation. अगर कोई बिल डिफीट हो जाता है, सो बिल डिफीट हो जाता है, सो दिस कास्ट्स डाउट्स। क्या इमीडिएटली रिजाइन करना होता है अगर कोई बिल डिफीट हो जाता है? नहीं, इट कास्ट डाउट्स। सो दिस कैन आइदर लीड टू ए फ्लोर टेस्ट, और इट कैन लीड टू ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, ऑल राइट। इट रिक्वायर्स 7 डे नोटिस बिफोर इंट्रोडक्शन। तो जैसे न्यूज वगैरह में आप देखते हैं, नोटिस आ जाता है कि अरे आज ये बिल का नोटिस आ गया, वक्फ बिल का नोटिस आ गया। इट मींस 7 डेज के अंदर, आफ्टर 7 डेज, इट कैन बी टेकन अप बाय द हाउस, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फार्म लॉ रिपील बिल 2021, so it will be prepared by which department? Department, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाएगी इसको, ठीक है, एंड इट विल बी प्रेजेंटेड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ओके, then we have the private bill. So it is brought forward by any parliamentarian other than a minister, and this represent individual or group interest and does not necessarily reflect the government stance. तो bills like president's rule होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ब्रॉट इन वंस कि इंडिया में ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, समथिंग समथिंग लाइक दिस। देयर वाज दिस ट्रांसजेंडर बिल एज वेल। ओके, सो ये इस टाइप के बिल्स जो हैं उसको लाया जाता है। सो दिस डज नॉट reflect the government's intention, rather it reflects the interests of the private person. Approval prospect, so it faces a tougher road to approval. Why? Because there is very less political support और प्रायोरिटी कंपेयर्ड टू गवर्नमेंट बिल। और अगर इसका रिजेक्शन हो जाता है, विच कंटिन्यूज टू हैपन, इसका रिजेक्शन बहुत होते रहता है, इट बेयर्स नो डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस ऑन द गवर्नमेंट स्टैंडिंग और कंटिन्यूटी। बट अगर पब्लिक बिल डिफीट होता है, गवर्नमेंट बिल, सो इट मीन्स दैट द मेजोरिटी इज इन डेंजर एंड द गवर्नमेंट कैन पोटेंशियली फॉल। एंड नोटिस पीरियड जो है, notice period, it necessitates a 1 month notice. What was the notice period in government bill? 7 days, और इसमें 30 days का नोटिस। ओके, तो देर इज अ डिफरेंस। आप देख रहे हैं, द हाउस इज मोर इंटरेस्टेड इन विच काइंड ऑफ बिल देन? द हाउस इज मोर इंटरेस्टेड इन द पब्लिक बिल, क्योंकि इसमें बोल रहा है आपको बेसिकली 30 डेज का नोटिस देके एक तरीके से आपको डिटर कर रहे हैं, मत करो,
क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस तरीके से। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 30 डेज का नोटिस आपको देना पड़ेगा। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग रेस्ट्स विद द मेंबर, नॉट एनी मिनिस्ट्री। तो अगर आप बिल लेके आ रहे हैं तो आप ही को करना होगा। एंड दिस अलाउज फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। एंड इसमें जो है द थिंग इज कि दिस इज ब्रॉट फॉर अटेंशन। आप बिल कोई लेके आ रहे हैं तो उससे आपके कंस्टिट्युएंसी में आपका नाम बढ़ेगा, या दिस कैन बी अ पब्लिसिटी स्टंट एज वेल। ऑल राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ अगर मैं आपको बताऊं फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड आस्क मी। ओके, डू आस्क मी, अगर क्वेश्चन जो है आपका यहां पर अगर है तो मुझसे आप पूछिएगा जरूर। तो फिनेंस मनी बिल समझ में आ गया। अगर मैं आपको फाइनेंशियल बिल की बारे में बात करूं तो दो टाइप का फाइनेंशियल बिल होता है, दिख रहा है आपको क्लियरली स्क्रीन पे साइड में। सो फाइनेंशियल बिल जो है वो 117(1), 117 आर्टिकल क्लॉज 1 और 117 आर्टिकल क्लॉज 2 में जो है आपको मिलता है। सो 117 क्लॉज 1 वाला जो बिल है इसको हम क्या कहेंगे, वी विल से दिस इज फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। और 117 क्लॉज जो 3 में आता है उसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल बिल क्लॉज 2। तो दिस इज फाइनेंशियल बिल क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, एफ बी मीन्स फाइनेंशियल बिल। अब देखिए दोनों में डिफरेंस और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है लोगों को। सो फाइनेंशियल बिल क्लॉज जो 117 क्लॉज 1 का जो टाइप 1 का फाइनेंशियल बिल है, इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 110। सो 110 क्या होता है, मनी बिल। सो मनी बिल में जो जो चीजें इंक्लूड नहीं हो सकती हैं वो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में इंक्लूड होता है। ओके, ऑल राइट। और उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ आर्टिकल 110 में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो भी इसमें रहती हैं। अब इसका मेरा मतलब क्या है, इसमें मेरा ये मतलब है, मैं फिर से कह रहा हूं, FB1, दैट इज फाइनेंशियल बिल 1, जो कि 117 क्लॉज 1 आर्टिकल में प्रेजेंट है, दिस इंक्लूड्स द मनी बिल थिंग्स प्लस नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल। अब समझ में आया? मतलब इसमें वो चीजें होंगी जो मनी बिल में आप डाल सकते हो, बट इसमें नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स भी होगा। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकल 110? आर्टिकल 110 से ये डिफरेंट कैसे है? जब मैं 110 की बात कर रहा हूं, आई एम रेफरिंग टू मनी बिल, आई एम रेफरिंग टू व्हाट, मनी बिल। लेकिन FB1 दैट इज फाइनेंशियल बिल 1 जो है, उसमें मनी बिल की चीजें आप डाल सकते हैं, प्लस एनी नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रपोजल यू कैन ऑल्सो पुट। ओके, अब यहां पर जो है, सिंस इसमें मनी बिल वाली चीजें हैं, तो आर्टिकल 117 कहां से ओरिजिनेट हो सकता है? सिंस इसमें मनी बिल वाली चीजें हैं तो आर्टिकल 110 कहाँ, LS में, वेरी गुड, वहीं पर ये ओरिजिनेट होगा। ओके, और इसमें प्रेसिडेंट का एडवाइस जरूरी है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली वाया द प्रेसिडेंट्स एडवाइस। ऑल राइट, और इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन इसका लोकसभा में होगा, लेकिन क्या राज्यसभा के पास कोई पावर बचेगा इसमें? इसका इंट्रोडक्शन लोकसभा में होगा, बट राज्यसभा विल हैव नॉर्मल पावर्स हियर। राज्यसभा के पावर को म्यूट नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, और FB2 जो है, दिस इज फाइनेंशियल बिल 2 विच इज देयर इन 117 क्लॉज 3। ये क्या है, ये बेसिकली जो है, इसमें कोई भी चीज मनी बिल वाली नहीं रहेगी, बट इट विल इंक्लूड मेजर्स विच इज इम्पैक्टिंग
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्पेंडिंग इन सम वे। ओके, ऑलराइट, और ये जो है इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि इसका ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, इसका जो प्रोसेस है दिस विल बी सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल। तो मैंने तीन चीजें बताई, अब इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए। मैंने आपको बताया कि एक जो है 110 आर्टिकल है, विच इज व्हाट माय फ्रेंड, मनी बिल है। फिर एक 117 क्लॉज वन है, जिसको मैंने क्या कहा, फिनेंस बिल टाइप वन हो गया, ये एफबी इज फिनेंस बिल। एंड देन 117 क्लॉज थ्री है, विच इज फिनेंस बिल टाइप टू। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया? इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया कि मैं फिर से बताऊं? नेचर विल बी रिकमेंडेटरी ओनली फॉर आरएसएस, नो, इट विल नॉट बी रिकमेंडेटरी। एफबी वन में ओरिजिन बस लोकसभा में होगा, बट राज्यसभा के पास फिर भी पावर होंगे। ओके, ओरिजिन सिर्फ लोकसभा में होगा, बाकी राज्यसभा के पास जो है आपका पावर होंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मनी बिल समझ में आ गया? मनी बिल आपको समझ में आ गया? ओके, इज इट समथिंग दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, और शुड आई रिपीट एवरीथिंग अगेन? अगर एवरीथिंग है तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, अगर कुछ स्पेसिफिक आपको पूछना है तो वो आप बता सकते हैं। चलिए मैं फिर से फिर पूरी पूरी चीज जो है, ओके, उसमें जो है आपको बताता हूं। देखिए, मनी बिल आपको समझ में आ गया, 110 में है। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूं, दिस इज नॉट ए, ओके, दिस इज नॉट ए बैड थिंग, एवरीबडी जोन्स आउट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मनी बिल जो है वो आपको पता है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन योर लोकसभा, और राज्यसभा के पास सिर्फ कैसा पावर होता है, रिकमेंडेशन वाला पावर होता है। और अभी हमने आधार वाला डिस्कस किया था कि कैसे जो है मनी बिल में जो है बहुत सारी चीजों को मनी बिल बना के पास किया जा रहा है, सो दैट राज्यसभा की स्क्रूटिनी से आप बच सके। ओके, सो ये चीज जो है आपको मनी बिल के बारे में समझ आ गया होगा। बट मेरा अब क्या पॉइंट है दैट आपको मैं समझाऊं, 117 1 और 117 3। मनी बिल समझ में आ गया? जस्ट टेल मी यस और नो, कि उसमें भी डाउट है। मनी बिल आपको समझ में आ गया? यस, क्लियर है। अब ये फिनेंस बिल मैं आपको बताता हूं फिर से। तो फिनेंस बिल जो वन होता है ना, 117 1, उसमें आपका निकलता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन। सो ये जो होता है, इसमें दोनों चीज होती है, इसमें मनी बिल की चीजें भी होती हैं, प्लस इसमें जो है नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होते हैं। यहां तक समझ में आया? जस्ट हेल्प मी आउट विथ योर यस एंड नोस। मनी बिल की भी चीजें होती हैं, मतलब व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 110, वो सारी चीजें भी यहां पर होती है, और उसके साथ नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस भी होते हैं। ओके, सो ये जो है, ओके, ये जो है 117 1, विच गिव्स यू द फिनेंस बिल वन, दिस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ओके, दिस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अब यहां पर इनका जो है मनी बिल के साथ, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले ये समझिए कि होता क्या। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, व्हाट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा? एफबी वन, दैट इज फिनेंस बिल कैटेगरी वन, आर्टिकल 117 क्लॉज वन का। ठीक है, सो इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट इसका जो सिमिलैरिटी है मनी बिल के साथ, इट एंड्स हियर। नाउ RS has powers, that is Rajya Sabha has the power to amend and reject it। क्या ये क्लियर है?
मुझे ये नहीं पता कि आपको 117 में डिफरेंस पता नहीं है, मुझे बस ये बताइए कि 110 दैट इज मनी बिल, और अगर मैं आपसे पूछूं 117 क्लॉज 1 दैट इज फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया या इसमें अभी भी डाउट है? ओके, आई जस्ट विश टू नो फ्रॉम अदर पीपल। आर एस भाई, सौम्या, डिड यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल राइट। तो यहां पर क्या होता है, 117 क्लॉज 1 में मनी बिल की चीजें प्लस कोई भी नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोविजन, कोई भी नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो है आप डाल सकते हैं। तो 117 क्लॉज 1 के अंदर आपका क्या आ जाता है, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1। तो दोनों में मैं फिर से डिफरेंस एक बार लास्ट में बता देता हूं। 110 इसमें आर एस हैज नो रोल एट ऑल, ओनली रिकमेंडेशन, and that recommendation can either be accepted or rejected and the bill is deemed to be passed. It can only originate in LS. अब यहां पर जब मैं 117 क्लॉज 1 में आ जाता हूं फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में, सो इसका ओरिजिन कहां होता है, इसका ओरिजिन कहां होता है, एलएस में होता है। बट आरएस के पास पावर है? डज आरएस हैज एनी रोल इन फाइनेंस बिल कैटेगरी 1? सो द आंसर इज यस, आरएस कैन रिजेक्ट और अमेंडेड, और अगर ऐसा होता है देन इट इज रेफर्ड टू दी, जब अगर हो जाता है तो क्या होगा, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो इट विल बी रेफर्ड टू दी जॉइंट कमिटी। क्या एमबी में पॉसिबल है, मनी बिल में? मनी बिल में पॉसिबल है, नहीं है। अब मैं फिर से एक बार समरी बता रहा हूं। मनी बिल एलएस ओरिजिन दैट इज लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकता है सिर्फ, बट एंड आरएस हैज नो रोल, ओनली recommendations within 14 days which can either be accepted or rejected। फाइनेंस बिल क्लॉज 1 में जो कैटेगरी 1 है आपका, या 117 क्लॉज 1 वाला जो फाइनेंस बिल है, उसका ओरिजिन एलएस में हो सकता है। सो दिस इज सिमिलैरिटी विथ मनी बिल, बट राज्यसभा का पावर वापस आ जाता है यहां पर। नाउ द राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड इट, लेकिन ओरिजिनेट सिर्फ एलएस में हो सकता है। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 का गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, योर बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020। क्या ये चीज क्लियर है? जस्ट नॉर्मल लेजिस्लेशन इंक्लूड है, इसीलिए राज्यसभा अमेंड कर सकती है। यस, नॉर्मल लेजिस्लेशन का पावर है, दैट इज वाई राज्यसभा का पावर वापस आ जाता है। अब क्लियर है? अब क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। देखिए, ये चीज है ना, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी शेमलेस। बिल्कुल कहना नहीं आया, लेकिन उसमें नॉर्मल लेजिस्लेशन है इसीलिए पावर वापस दे देते हैं। अब दूसरी चीज जो है, 117 कैटेगरी 3, इसमें क्या होता है, इट डज नॉट हैव टैक्सेशन प्रोविजन, प्लीज रिमेंबर, इट डज नॉट हैव टैक्सेशन प्रोविजन। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, बट इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2, एफबी कैटेगरी 2। So it does not contain any provisions under Article 110. It does not contain any provisions under Article 110, but and it can be introduced where, इसका ओरिजिन कहां से हो सकता है, इसका ओरिजिन कहां से हो सकता है, एलएस एंड आरएस से हो सकता है। ओके, एलएस से और आरएस से हो सकता है, ठीक है। एंड राज्यसभा हैज इक्वल पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब समझ में आया आपको डिफरेंस? डिड यू गेट द डिफरेंस? अब एक और डिफरेंस है जो आपको समझना जरूरी है, 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 में।
117 clause 1 give you finance bill category 1, 117 clause 3 gives you finance bill category 2। उसमें एक डिफरेंस और है, व्हाट इज दिस? प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है दोनों में। क्या प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है दोनों में? सो द आंसर, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत नुआंस चीज बता रहा हूं। द आंसर इज यस, लेकिन द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। यस क्यों मैं कह रहा हूं? प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड, द आंसर इज यस, बट इन द फिनेंस बिल कैटेगरी 1 it is required before introduction, just like the money bill. And in the finance bill category 2 it is required before consideration। अब आप पूछेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब आप फिनेंस बिल कैटेगरी 2 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब उस पर डिबेट स्टार्ट होगी उसके पहले प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन चाहिए। वेयर एज फिनेंस बिल कैटेगरी 1 में इंट्रोडक्शन, मतलब विदाउट द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन यू कैन नॉट इवन इंट्रोड्यूस इट। डिड यू गेट द डिफरेंस? फिनेंस बिल कैटेगरी 1 में मनी बिल का एलिमेंट होता है, और फिनेंस बिल कैटेगरी 2 में मनी बिल का कोई एलिमेंट एलिमेंट नहीं होता है, ओनली एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 100, मैंने 117(1) का एग्जाम्पल दे दिया आपको। मैंने क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसमें टैक्सेशन था ना। अब आप, अब आई टेक गौरी एंड राघवेंद्र क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन यही है ना कि जीएसटी को मनी बिल की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा है, उसको फिनेंस बिल कैटेगरी 1 क्यों देखा जा रहा है? यही क्वेश्चन था ना आपका। सो द आंसर इज दैट उसमें टैक्सेशन है, बट उसमें क्या रेगुलेटरी प्रोविजन भी है रिलेटेड टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, रेगुलेशंस भी है ना। सो दैट इज व्हाई मनी बिल का एलिमेंट प्लस रेगुलेटरी प्रोविजन इज ऑल्सो देयर। इज रेगुलेटरी प्रोविजन मनी बिल रिलेटेड? इज रेगुलेटरी प्रोविजन मनी बिल रिलेटेड? द आंसर इज नो। तो इसीलिए इसको जो है 117 क्लॉज 1 में रखा गया है, दैट इज फिनेंस बिल कैटेगरी 1। व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ 117 क्लॉज 3? मनरेगा बिल, मनरेगा एक्ट। उसमें से क्या हो रहा है? टैक्सेशन से रिलेटेड है कुछ? मनरेगा में कुछ टैक्स ले रहे हैं क्या सरकार उसमें? नहीं ले रही है, लेकिन क्या कर रही है? पैसा दे रही है ना कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से दे रही है ना। तो इसीलिए 117 क्लॉज 3 उसमें आ जाएगा। अब मुझे बताइए किसको डाउट है? जिसको डाउट है वो शेमलेसली कहेगा, किसी का नाम तो मैं ले नहीं रहा, लेकिन मुझे बताएगा अगर नहीं समझ में आया। लास्ट ईयर भी इसी टाइप से हुआ था, पीपल हैड टोल्ड मी कि नहीं आया समझ में, तो फिर मैंने बताया है। लेकिन यू हैव टू टेल मी राइट नाउ। अब आपने पूछा है कि बिफोर कंसिडरेशन क्यों रखा गया है। देखिए, इसमें जो है देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स, ओके। जैसे अब मनरेगा है, मनरेगा एक्ट को इंट्रोड्यूस आपने कर दिया, बिल को रादर, बिल को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस पर डिस्कशन चल रहा है, सो उसमें उस लेवल की उस लेवल की अर्जेंसी नहीं है। जैसे टैक्सेशन जब आप लगाते हैं मनी बिल के अंदर या फिनेंस बिल कैटेगरी 1 के अंदर, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, ओके, ऑल राइट, ठीक है, ओके। सो रिकमेंडेशन कंसिडरेशन ठीक है। अब यहां देखिए, फिनेंस बिल कैटेगरी 1 में और फिनेंस बिल कैटेगरी 2 में प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, यस और नो? फिनेंस बिल कैटेगरी 1, फिनेंस बिल कैटेगरी 2, जो कि 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 से निकला है, उसमें जरूरत पड़ती है। द आंसर इज यस, लेकिन अलग अलग टाइम पे पड़ती है। जस्ट लाइक मनी बिल, जब भी आपको फिनेंस बिल कैटेगरी 1 प्रेजेंट करना है, सो इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द इंट्रोडक्शन। मतलब इसका मतलब प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन जो है वो आपका, ओके, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन जो है आपका, दैट विल बी नीडेड बिफोर द इंट्रोडक्शन।
मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट सर की हामी चाहिए और मैम की। इधर जो है FB 2 में, फिनेंस बिल 2 में, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, 7 दिन का नोटिस दे सकते हैं कि वी हैव इंट्रोड्यूस दिस, बट जब डिबेट स्टार्ट होगी तब आपको प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए आपको या रिकमेंडेशन चाहिए होगा, ठीक है, डिस्कशन से पहले। अब इसमें क्या होता है कि टैक्सेशन जो है, इट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो ना लोगों से, यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल। वेर एज यहां पर अगर आप देखेंगे, नरेगा में क्या करना था, नरेगा में आपको पैसा देना था, यस और नो। नरेगा में आपको क्या करना था, पैसा आपको देना था, तो उतना जो है वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब डिस्कशन है, उसमें से एक्सचेकर का पैसा जा रहा है, तो डिस्कशन होने से पहले या कंसिडरेशन होने से पहले आपको प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की जरूरत है। तो प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज इन द 117 clause 3 bills is required before consideration, whereas in 117 clause 1 bill it is needed before introduction, just like your money bill under 110। क्या ये चीज क्लियर है? अब किसी ने पूछा था मेरे से कि क्या एग्जाम्पल्स और मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। मनरेगा एक्ट हो गया एक तो आपका, उसके साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, कैन आई से, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, उस टाइप के बिल्स जो हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा, लोकपाल लोकायुक्त बिल। वाई लोकपाल लोकायुक्त, यू विल से कि इसमें लोकपाल कहां से है, लोकपाल की सैलरी कहां से मिल रही है, और लोकपाल का ऑफिस कहां से सेट हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ही ना सेट हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा जाएगा ना, तब ना जाके उस ऑफिस में उस वो ऑफिस का सेटअप होगा। यस, ट्रांसफर पेमेंट इन्वॉल्विंग बिल, लाडला बहन का अगर, लाडला भाई का अगर आपको करना है, उस टाइप का अगर आपको वाया ए बिल के थ्रू पास करना है, अगर उसको आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लाना है, तब आप कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू दैट। इज इट क्लियर? 117 क्लॉज 3 में आ जाएगा वो। नाउ आई टेक सम मोर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल दे दिया मैंने FB 2 का, एक चार्ट मैं बता देता हूँ। इन देर इज अ क्वेश्चन, सो इन दैट केस वंस FB 1 इज पास्ड प्रेसिडेंशियल असेंट इज रिक्वायर्ड, वेर एज वंस FB 3 इज पास्ड प्रेसिडेंशियल असेंट इज नो मोर रिक्वायर्ड। ओके, नहीं नहीं, प्रेसिडेंशियल असेंट तो आपको ऑर्डिनरी बिल में भी चाहिए ना, व्हेन द प्रेसिडेंट विल असेंट देन ओनली आपको ये करेगा। तो FB 1 जो है, ओके, FB 1 में ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नथिंग रिटन। जब मनी बिल में हम बात करते हैं कि सिंस द प्रेसिडेंट साहब हैज ऑलरेडी गिवन हिज असेंट, ओके, ओके, आई थिंक यू आर आस्किंग अबाउट दैट, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी बिल्स में जब भी हम ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे, तब वहां पर प्रेसिडेंशियल असेंट चाहिए होता है, प्रेसिडेंशियल असेंट जो है इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये जो है, दिस इज नॉट, दिस हैज नथिंग टू डू। ऑल राइट, सो यस, 117 क्लॉज 1 में जब उसका वो पैसेज कंप्लीट हो जाता है, 117 क्लॉज 1 में पैसेज स्टार्ट कहां से होगा, पहले मुझे ये बताइए, तब तब मैं आपको समझा पाऊंगा। 117 क्लॉज 1 में कहां से स्टार्ट होता है? LS से स्टार्ट होता है, ओरिजिन तो LS से होता है ना, लोकसभा से। उसके बाद वो राज्यसभा जाएगा, तो राज्यसभा के पास कैसी पावर है, सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर है 14 दिन की। 117 क्लॉज 1 की मैं बात कर रहा हूं, अमेंड और रिजेक्ट कर सकता है, वेरी गुड, इक्वल पावर है। उसके बाद जो है, आफ्टर द पैसेज इट विल गो टू द प्रेसिडेंट। ओके, it will go to the president, he can either give his assent, he can either withhold it or it can return it। okay, उसी तरीके से 117(3) में सेम थिंग। 117(3) कहां पर निकलेगा, 117 क्लॉज 3 कहां पर निकलेगा? एनी, आइदर इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, एंड देन सेकेंड हाउस में जाएगा, और देन उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाएगा। इज इट क्लियर? रिकमेंडेशन में डिफरेंस है, रिकमेंडेशन में क्या है, 117 क्लॉज 1 में रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन। ओके, वेयर एज 117 क्लॉज 3 में बिफोर डिस्कशन। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? अब मैं इसका एक आपको वो बना के दिखा सकता हूं, इफ यू वांट आई कैन शो यू ए, जस्ट अ मोमेंट। ओके, आपको मैं एक टेबल बना के दिखा सकता हूँ डिफरेंस का, आई थिंक समबडी हैज आस्क्ड फॉर दैट। सो
This is 117 clause 1 and this is 117 clause 3. Okay. So let us say कि यहां पर हम फीचर्स लिख रहे हैं. ऑल राइट. तो क्या यहां पर टैक्सेशन इंक्लूडेड है अंडर 110 वाले? तो 117 में यस और 117 क्लॉज 3 में नो. ठीक है. 117 क्लॉज 3 में क्या रहेगा? 117 क्लॉज 3 में ओनली एक्सपेंडिचर. ओके. वेर एज 117(1) में एलिमेंट्स ऑफ मनी बिल विल बी देयर. ओके. दूसरा चीज है प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. तो इसमें भी यस और 117(3) में यस. दोनों में टिक रहेगा. लेकिन 117(1) में यू नीड इट बिफोर इंट्रोडक्शन और यहां पर जो है बिफोर कंसिडरेशन, मतलब जब डिबेट स्टार्ट होगा उसके पहले. यहां तक समझ में आया सभी को? नहीं आया मुझे रोकिए, और मुझे बोलिए नहीं समझ में आया. यहां तक सभी को समझ में आ गया? यस. मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर. ओरिजिन कहां होगा इसका? इट कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन एलएस. और 117 क्लॉज 3 इट कैन ओरिजिनेट इन आइदर एलएस या आरएस. ये हमारा हो गया 117(1) और 117(3). और उसके बाद जो है, अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसमें आरएस का रोल क्या रहेगा? आरएस का रोल कैन अमेंड और रिजेक्ट. यहां पर भी सेम रहेगा, कैन अमेंड और रिजेक्ट. यहां तक समझ में आया आरएस का रोल? उसके बाद कैन इट बी सेंट टू ए जॉइंट कमिटी इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. ओके. सो अब समझ में आया? ये देखिए, whosoever was asking for a side by side comparison, क्या अब आपको समझ में आया? अब मैं इसको एक और चीज कर सकता हूं आपके लिए, कि मैं आपको बता सकता हूं इसका डिफरेंस 110 से कैसे है. इसका डिफरेंस 110 से ऐसे है बिकॉज इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ टैक्सेशन एक्सपेंडिचर. सो ये मनी बिल के अंदर आपका रहेगा. और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन. एलएस का ओरिजिन है. और आरएस हैज लिमिटेड रोल. It can only recommend changes which can or cannot be accepted. और आरएस के पास 14 डेज का टाइम है. ऑल राइट. ठीक है. और 110 जो है उसके लिए प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इंट्रोडक्शन के पहले नीडेड है. ऑल राइट. क्लियर है? अब किसी को डाउट है एक भी तरीके का फिनेंस बिल में तो मुझे आप बताएंगे. किसी भी ढंग का डाउट है आपको? यस और नो जस्ट बोल दीजिए सो दैट वी कैन गो अहेड. ओके. टैक्सेशन का मतलब है आप पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है. जैसे आप जीएसटी में टैक्स इंपोज किया जा रहा है ना, अलग अलग स्लैब का. लेकिन जीएसटी में और भी चीजें हैं, तो इसीलिए हमने उसको स्ट्रिक्टली मनी बिल नहीं रखा. नाउ द प्रॉब्लम विथ आधार इज यही ना, कि आधार में ठीक है देर इज थिंग्स अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्पेंडिंग, but also a whole structure of privacy concern is there, and it is related to general provisions, and they tried to pass it off as a money bill. All right, any doubts? तो मनी बिल का क्या स्कोप है मुझे वो पता लगाना है. अगर अगर मनी बिल का मैं आपको पूछूं कि स्कोप क्या है, तो आई जस्ट से, जस्ट अ मोमेंट. 110 की ही अगर मैं बात करूं, कहीं और ना जाऊं, तो इट्स रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, कि किसी टैक्स को आप अबॉलिश कर रहे हैं. एनी काइंड ऑफ रेमिशन ऑफ टैक्सेस, कि उसको जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं या उसको डिले कर रहे हैं टैक्स को.
any kind of alteration of taxes or any kind of regulation of taxes. उसके साथ साथ अगर आप बोरोइंग को रेगुलेट कर रहे हैं तब भी आप मनी बिल उसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कस्टडी हो गया, विड्रॉल हो गया, उससे पैसे निकालने हो गए, अप्रोप्रिएशन, देन ऑल्सो यू कैन कीप इट एज ए मनी बिल। ऑल राइट। और उसके साथ साथ किसी भी टाइप का कोई भी डिक्लेरेशन आपको करना है एक्सपेंडिचर के बारे में, दैट ऑल्सो कैन बी मनी बिल। तो स्कोप बहुत बड़ा है, द स्कोप जो है इसका बहुत बड़ा है। अगर इसमें कोई चीज नहीं होता है, अगर कोई बिल, ये वो चीज होती है इसमें जो कि मनी बिल में नहीं होता है, लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ मनी बिल, तब हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? फिनेंस बिल के कैटेगरी में डाल देंगे। ओके, ऑल राइट। कस्टडी की बात ही नहीं है ना, सीएफआई का एक्सपेंडिचर है फिनेंस बिल कैटेगरी 2 में। कस्टडी के लिए आप 110 की तरफ देखेंगे। कस्टडी मतलब किसके कस्टडी में रहेगा? नहीं, कस्टडी का मतलब क्या? हमने 117(3) में क्या पढ़ा था, और फाइनेंस बिल 2 जो है उसमें क्या पढ़ा था? एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, याद आया? एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे नरेगा में आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे ना, ओनली एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग। और उसी तरीके से कस्टडी का मतलब क्या है? कौन रखेगा? कस्टडी होता है ना पेरेंटल में, कि कौन पेरेंट बच्चे को रखेगा। उसी तरीके से हु विल हैव द कंट्रोल ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। तो अगर उसके बारे में बात है देन मनी बिल जो है उसके तरफ हम देखेंगे। अब क्लियर है? तो मुझे ये समझ नहीं, स्पेंडिंग है, सिर्फ सिर्फ स्पेंडिंग 117। ओके, 117 जो है, एक्सपेंडिचर उसमें भी है। यू आर करेक्ट। ओके, एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी है, लेकिन यहां पर जो है अगर आप देखेंगे, इट इज नॉट ओनली एक्सपेंडिचर, इट इज डेक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। इट इज डेक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर। 110 में हम क्या कर रहे हैं? 110 का जो हम स्कोप की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको डेक्लेरेशन करना है, डेक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तब 110 के अंदर आएगा। और 117 क्लॉज 3 जिससे फिनेंस बिल टाइप 2 निकल के आता है, वहां पर हम लोग सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? और अगर किसी बिल में ऐसा फिनेंशियल प्रोविजन रहेगा या कोई भी ऐसा मैटर रहेगा जो कि मनी बिल में कवर्ड नहीं है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज ए फिनेंस बिल। ओके, okay, did not understand the difference between declaration of expenditure and expenditure, और you did not understand कि कैसे ये मनी बिल और फाइनेंस बिल है? what did not understand specifically? Because I think more or less you have understood the entire thing. एक्सपेंडिचर और डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर आपने नहीं समझा, ठीक है। देखिए, मनी बिल जो है, ओके, मनी बिल जो है, अगर उसमें हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की, ओके, सो इसका मतलब आपने कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर किया है विच डज नॉट रिक्वायर, विच डज नॉट रिक्वायर प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। जैसे आपने अगर किसी का लोन रिपेमेंट किया है, किसी को सैलरी दी है, ऑल राइट, तो ये चीज जो है वो डिक्लेरेशन में आप सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैंने ये खर्चा किया है। दूसरी चीज क्या है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 117 क्लॉज 3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर प्रायर परमिशन लेना पड़ रहा है। ओके, जैसे मनरेगा बिल में मुझे लेना पड़ रहा था, वाई? बिकॉज उसमें मुझे एक मेजर चंक ऑफ फंड एलोकेशन की जरूरत थी। सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड?
क्या ये चीज अब आपको समझ में आई? ओके। 110 में जब मैं कहता हूं डेक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, मैं ये कहता हूं डेक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सो इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी डन द एक्सपेंडिचर, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग इट. सो एनीथिंग, okay, anything which does not require prior parliamentary approval, या एनुअली मुझे पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मैं खुद से एज द गवर्नमेंट, ओके, एज द गवर्नमेंट आई कैन डू इट, तो मैं सिर्फ डिक्लेयर कर दूंगा अंडर 110. लेकिन अगर मुझे पैसे निकालने हैं एंड फॉर दैट आई रिक्वायर प्रायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, so then I will put it under 117 clause 3. Is it clear? So this is okay. This is basically you are telling that I have done it when I am talking about declaration. And 117 clause 3 में क्या है? You are asking, can I take? Okay. ऑल राइट. जो भी स्कीम्स नहीं एग्जैक्टली exactly, अगर कोई मेजर स्कीम लेके आती है जिसका स्टैट्यूटरी बैकिंग होता है, अगर जैसे बजट में आप कहते हैं ना कि हम मत्स्य संपदा योजना करेंगे, और हम जो है डिक्लेयर डिक्लेयर कर रहे हो आप, बजट में क्या कर रहे हो आप, डिक्लेयर कर रहे हो ना कि हम एक मखाना को प्रमोट करेंगे, वी विल फॉक्सनट प्रमोशन स्कीम लेके आएंगे. यू आर डिक्लेयरिंग कि मैं ये खर्चा करूंगा, ओके, और या ये मैं खर्चा कर चुका हूं. सो दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ओके. लेकिन आपको जैसे कोई एक बड़ा लॉ लेके आना है विच विल पुट अ वेरी बिग स्कीम, जो एक बहुत बड़ा डेंट लेके आएगा आपके कंसोलिडेटेड फंड पे, एंड यू नीड, ओके, यू नीड द अप्रूवल. आप पहले अप्रूवल ले रहे हो ताकि स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाए. क्या मिल जाए? स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाए, लेजिस्लेटिव बैकिंग मिल जाए. तो उस केस में क्या रहेगा? यू विल टेल द पार्लियामेंट दैट आई नीड टू डू एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. तो 117 क्लॉज 3 जो है, इट डील्स ओनली विद दैट, इट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर. और इसमें किसी भी टाइप का टैक्सेशन नहीं रहता है, इसमें किसी भी टाइप का रेवेन्यू रेजिंग नहीं रहता है. इसमें सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना रहता है या खर्चा करना रहता है. जैसे मनरेगा बिल में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो बिल था, उसमें सिर्फ खर्चा करना था. आप गड्ढा जो है उसको आप खोदेंगे, आपको सरकार पैसा देगी. क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? 110, जस्ट आई विश टू आस्क यू गाइस कि क्या 110, 117 और 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 में किसी भी टाइप का दिक्कत है आपको? नहीं है? ओके. ऑल राइट. सो प्राइवेट बिल इज डन. हाँ, एवरीथिंग इज डन, बस हमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को कंप्लीट करना है विच विल बी डन टुडे ओनली, क्योंकि एक मेजर हेडेक तो मैंने हटा दिया. अगर आप यहां पर देखिएगा, ऑल राइट, एलोकेशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, allocation of money from the consolidated fund of India, we are talking about in article 110. इसमें क्या होता है? एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन यू आर डूइंग कि मैं पैसा खर्च करूंगा या मैंने पैसा खर्च कर दिया है. और 117 में अगर आप देखिएगा फाइनेंस बिल में, 117 क्लॉज 3 में यहां क्या कर रहा है? सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रही है. तो यहां पर जो है, यू आर टेकिंग प्रायर अप्रूवल, ओके, सिर्फ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेजिंग रेवेन्यू ऑफ एनी काइंड, और दिस इज नॉट रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ एनी काइंड. इट इज स्ट्रिक्टली limited to expenditure, and they are treated like ordinary bills, okay.
and they can be considered by either house of parliament. Okay. और यहां पर जो है, दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, और बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा हैज इक्वल पावर. क्या ये चीज क्लियर है? ओनली थिंग हेयर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है, और फिनेंस बिल कैटेगरी वन में सिर्फ लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी राज्यसभा के पास पावर आ जाती है वापस से. और फिनेंस बिल कैटेगरी वन में क्या है, इसमें मनी बिल के प्रोविजंस प्लस नॉर्मल लेजिस्लेटिव मैटर, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द जीएसटी एक्ट. नाउ जीएसटी का जो बिल आया था, उसमें जीएसटी था दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, यस और नो? रेवेन्यू रेजिंग है कि नहीं जीएसटी के थ्रू? जीएसटी के थ्रू रेवेन्यू रेजिंग है, द आंसर इज यस. एंड यहां पर अगर आप देखिएगा, रेवेन्यू रेजिंग इज देयर, उसके साथ साथ नॉर्मल लेजिस्लेशन में क्या है, रेगुलेटरी प्रोविजंस आर देयर. तो दैट्स व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस एज ए फाइनेंशियल बिल कैटेगरी वन. और इसीलिए जो है, इसको सिर्फ आप लोकसभा में ला सकते थे, और उसके बाद जो है राज्यसभा में ट्रांसमिट करके राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स रहते. बट अगर मनी बिल की तरह लेके आते तो क्या राज्यसभा उसको अमेंड या रिजेक्ट कर सकता था? सो द आंसर इज नो. ओके. अब मुझे बताएं, किसी भी टाइप का दिक्कत है आप लोगों को? वी हैव रीच्ड 117. बजट प्रोसेस है, आई थिंक टुडे is the day we will complete this. Last year, I think it took us a very long time.